Hello and welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. Here I am going to discuss about the International Day of Pulses, which is celebrated on February 10th. As you know, hungry and unnourished people remains a global concern. There is about 1 billion people or more than that are globally remain hungry every day. Many Asian countries including India is among the countries with 20 to 34% population undernourished and categorized as alarming in the global hunger index. That is the great challenge in agriculture. Along with that, there are many other challenges like overgrowing population, food, quality food, then with energy availability and climate change. Growing world population will cause serious storm of food, energy and water shortages by 2050. Demand for food and energy will jump 70% and 100% and for fresh water by 30% as the population tops 9 billion. In the past, only nearly 12 crops received the major attention of scientific intervention. So, what is the problem if only few crops are attaining attention over the globe? That will cause the genetic narrow down or genetic causes like reducing the cultivation of different varieties. Okay, the big challenge is how to expand agriculture output without further constraining natural resources. So, in order to avoid the genetic narrow down or genetic erosion of different alleles, along with the intention to scope out many crops to grow diversified crops across the globe, 2016 was celebrated as International Year of Pulses. The theme was Nutritious Seeds for a Sustainable Future. So it is celebrated every year 10th February, and this year is the third time we are celebrating this day. The aim of this day is to recognize the importance of pulses like especially chickpea, dry beans, lentils, dry peas, lupins, among others, as a global food. World Pulse Day is a day established by the FAO, that is Food and Agriculture Organization of UN, to recognize the importance of pulses. The theme is Love Pulses for a Healthy Diet and Planet. Coming to the facts about International Pulse Day. The 68th UN General Assembly declared 2016 as the International Year of Pulses. During this year, this particular UN organization aims to heighten public awareness of the nutritional benefits of pulses as part of sustainable food production aimed towards food security and nutrition. The key messages of that particular 2016 was pulses are highly nutritious, pulses are economically accessible and contribute to food security at all levels. Pulses have important health benefits. Pulses foster sustainable agriculture and contribute to climate change mitigation and adaptation. Then pulses promote biodiversity. The objectives of that year were promote the value and utilization of pulses throughout the food system, raise awareness about the benefits of pulses including sustainable agriculture and nutrition, encouraging concerns to further global production, then advocate better utilization of pulses in crop rotation, then addressing the challenges in the trade of pulses. So now we are discussing about the International Day of Pulses. Here there is a need to understand what is pulse, what is the difference between legume and pulse and all. So let us see what is a pulse. Pulses are the annual leguminous crops yielding from 1 to 12 grains or seeds of various size, shape, and color within a pod. As you know, you may find pod as like this. Here you will find the grains. Okay, it may be a small pod or it may be a long pod. You may find there are big pods on trees. Those are also legumes but not consumed as pulses. Sometimes maybe consumed as pulses. So the definition of pulse is
इट इज़ लिमिटेड टू क्रॉप हार्वेस्टेड सोनली फॉर ड्राई ग्रेन, मतलब ड्राई ग्रेन की तरफ से जो खाते हैं दैट इज़ नथिंग बट पल्स, देर बाय एक्सक्लूडिंग क्रॉप्स हार्वेस्टिंग ग्रीन फॉर फूड, मतलब ग्रीन पीस, ग्रीन बीन्स एट्सेट्रा विच आर क्लासिफाइड एज वेजिटेबल क्रॉप्स। जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था दैट वी हार्वेस्ट सम पॉड्स फ्रॉम ट्रीज, तो उनको हम वेजिटेबल क्रॉप्स के तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अगर उसी पॉड को हम ड्राई करके सीड निकाल के खाएंगे, मतलब इफ़ वी कंज्यूम दैट पर्टिकुलर ग्रेन, ड्राई ग्रेन, देन वी कॉल इट एज पल्स। ऑल्सो एक्सक्लूडेड दोज क्रॉप्स यूज्ड मेनली फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, जैसे आप जानते हैं मूंगफली होगा या सोयाबीन होगा जिसको हम ऑयल के तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे। देन लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक सीड्स ऑफ क्लोवर एंड अल्फाल्फा, इसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं, दैट आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सोविंग पर्पसेस। They include Barbara beans, dry beans like kidney, azuki, black gram, sword gram, winged bean, hyacinth bean, yam, फिर ड्राई ब्रॉड बीन्स, ड्राई हॉर्स बीन्स, चिकपीस, ड्राई काउपीस, लेंटिन्स, लुपिन्स, ड्राई पीस, पिजन पी और वेचर्स। तो हम थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं पल्सेस के बारे में। Pulses have a long rich history. The first evidence of pulses comes from 11,000 years ago in the Fertile Crescent, a region in the Middle East which was home to some of the earliest human civilization. तो एज एफ वो रिकग्नाइज करता है 11 टाइप्स के पल्सेस है। मैं नेम करूँगी ड्राई बीन्स, ड्राई ब्रॉड बीन्स, ड्राई पीस, चिकपी, काउपी, पिजन पी, लेंटिल्स, बर्बरा बीस, वेलवेट, lupins, and pulses ness, not elsewhere specified, like minor kin pulses. Pulses are annual crops that yield between 1 to 12 grains, जैसे मैंने बताया था। अब आते हैं पल्सेस और सीरियल्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब वाई द इंटरनेशनल पल्स डे इज़ प्रमोटेड, वाई नॉट इंटरनेशनल सीरियल डे। एज यू नो वर्ल्ड हमेशा सीरियल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, बिकॉज फॉर आवर डेली डाइट वी नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ऐसा हमारा एक ट्रेंड बढ़ के आया है, वी प्रिफर मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज कंपेयरिंग टू पल्सेस। ओके, एंड अब जैसे आप जानते हैं अपने पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हम सीरियल्स को ही प्रोवाइड ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बट nowadays द ट्रेंड इज़ डिफरिंग और इट इज़ चेंजिंग, जहाँ पे हमें अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चना दाल भी मिलेगा या तूर दाल भी मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। Now, gradually, when the global concern is about addressing the quality of food or addressing the hidden hunger and malnutrition like serious issues, तो उस टाइम में पल्सेस को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो अगर हम अपने एमएसपी में देखेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को लोवेस्ट प्राइस जिसके ऊपर बाई किया जाता है, तो उस प्राइस के ऊपर हम डिफर करेंगे। तो देखिए नीचे हमको पैडी, मेज़ और बाजरा दिया हुआ है जिसका कॉस्ट एमएसपी 1868, 1850 और बाजरा 2150, इतना कम प्राइस दिया हुआ है। दिस इज़ पर क्विंटल। ओके, तो अगर हम दूसरे क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे और पल्सेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मूंग, सिजेमम, उर्द, नाइजर, तो इनको देखिए मूंग को 7196 दिया है पर क्विंटल, सिजेमम को 6855, उर्द को 6000, लाइक दैट। तो इससे आपको पता चलेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस। यहाँ पे एक और भी कंसर्न है कि सीरियल्स का प्रोडक्शन पर एकड़ हम लेंगे तो ज़्यादा रहता है, बिकॉज वी गिव मोर न्यूट्रिशन, लाइक वी सप्लाई विथ केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक दैट, एंड वी गिव इमेंस केयर एज वेल एज वी ग्रो इट ऑन ए लार्जर एरिया, तो इसीलिए इसको एमएसपी कम भी दिया जाता है। लेकिन अगर हम उस टर्म में न्यूट्रिशन पार्ट से अगर बात करें तो एमएसपी पल्सेस को ज़्यादा दिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, एंड ईयर बाय ईयर जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, हियर आई हैव enlisted some of the major pulses of the world for your reference, and the diagrams or the photographs are also given here. तो पल्सेस अपने डेली डाइट का पार्ट बन चुका है ऑलवेज। तो
पल्सेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो वेजिटेरियन डाइट है उसके लिए प्रोटीन का मेन सोर्स बनता है। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उनके लिए तो डेयरी प्रोडक्ट्स है एंड द मीट प्रोडक्ट्स है, जिनसे वो अपना प्रोटीन का नीड फुलफिल करेंगे। लेकिन फॉर वेजिटेरियन डाइट पल्सेस आर द मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स। तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देखेंगे डिफरेंट पल्सेस का, जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर, आयरन, जिंक, फोलेट, ये सब भर भर के रहता है। उसी के साथ में यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए सीरियल्स के साथ उसका डाइटरी फाइबर, एनर्जी, प्रोटीन सब दिया है। अगर सीरियल्स को कंपेयर करेंगे तो पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट 20 to 50 टाइम्स मोर रहता है, डाइटरी फाइबर्स भी हाई रहता है एंड अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट लो रहता है। एज यू नो, nowadays the cases of sugar and diabetes is increasing drastically। तो अगर इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट, और डाइटिशियन के पास जाएंगे देन दे सजेस्ट अस टू कंज्यूम लेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड गो फॉर मोर प्रोटीन्स विथ लेस फैट एंड हाई डाइटरी फाइबर। तो इस टाइम में हम पल्सेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। इट डजेंट मीन दैट यू शुड ओनली ईट पल्सेस एंड अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स और अवॉइड सीरियल्स। ऐसा नहीं है कि एक बैलेंस डाइट में द क्वांटिटी ऑफ जो रेकमेंड किया जाता है पल्सेस एंड सीरियल्स उसको इक्वल में लेना चाहिए। अपने इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ है, वी ओनली कंज्यूम द सीरियल्स एज आई स्टेटेड अर्लियर। तो हियर आई हैव ऑल्सो गिवन द माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऑफ पल्सेस। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल्स नीचे दिए हुए हैं, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम बिल्कुल नील है, लेकिन ऑल द पल्सेस आर हैविंग दिस इन एनॉर्मस क्वांटिटी। ओके, so when we go with the vegetarian diet and when we go with the meat diet, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है, द लेवल ऑफ डेली इनटेक ऑफ पल्सेस रिकमेंडेड इन द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडिया। मतलब जितने ग्राम्स पर डे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, जैसे कि इन्फेंट होंगे, 1 to 3 ईयर होंगे, तो उनके लिए दिया गया है। तो इस टेबल से मैं बताना चाहती हूँ, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, अगर वो सिर्फ वेजिटेरियन है तो उसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, डेली 60 to 90 ग्राम्स ऑफ पल्सेस कंज्यूम करना चाहिए एज कंपेयरिंग टू अगर मीट फिश जो भी कंज्यूम करते हैं तो उनको 30 to 45 ग्राम्स कंज्यूम करना चाहिए पर डे। तो क्यों पल्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं? Pulses like lentils, beans, peas, chickpeas are important source of plant-based proteins and amino acids. The dry they play part of sustainable food production, aiming towards food security and nutrition. They are part of healthy diet to address all forms of malnutrition. They have positive effect on prevention of non-communicable diseases like obesity, diabetes, coronary conditions, and cancer. They are recommended in many dietary guidelines like health Canada's eating well with Canada's food guide। तो ऐसे जितने भी कंट्रीज़ के गाइडलाइंस रिलीज़ किया जाता है उसमें आजकल पल्सेस का जो जिक्र किया ही गया है। पल्सेस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेजिटेरियन डाइट, आर ऑफन यूज्ड इन मीट एज रिप्लेसमेंट। दे आर देयर फॉर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू क्लाइमेट चेंज। तो पल्सेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूएन के 17 सस्टेनेबल गोल्स में ग्लोबल हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का चैलेंजेस भी है। तो इन चैलेंजेस में पल्सेस को प्राइम इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। तो ह्यूमन डाइटरी बेनिफिट्स जैसे कि मैंने बताया था, उसमें बहुत सारे रिच एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, दे हैव हाई फाइबर कंटेंट, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कैसे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं? बिकॉज दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन यूज़ करके नोड्यूल्स बना के सॉइल में नाइट्रोजन का एक पार्ट बन सकते हैं। तो अगर हम सीरियल्स को कंपेयर करें तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जहाँ भी इरिगेटेड एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा पल्सेस को प्रिफर नहीं किया जाता है। ओनली 20% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स को जो वाटर देते हैं उसको हम यूज़ करेंगे तो पल्सेस को आराम से ग्रो कर सकते हैं।
दे आर हाईली वाटर एफिशिएंट एंड लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब इसका कार्बन यूज एफिशिएंसी भी हाई रहता है, कार्बन फुटप्रिंट जो रहता है वो कम रहता है। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर मंथ्स विदाउट लूजिंग देयर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर आप नॉनवेज डाइट को देखेंगे, यू कैनॉट स्टोर मीट अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट इट इज़ नॉट केस विद द पल्सेस। तो देखिए यहाँ पे वाटर यूज़ एफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम 1 kg ऑफ पोर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 5900 जो kg और लीटर्स ऑफ वाटर है वो चाहिए हमें। चिकन के लिए 4500, एग्स के लिए 1200, पल्सेस के लिए 2500 सिर्फ वाटर का नीड रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम सॉइल हेल्थ की बात करें तो 70 to 210 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। देन इससे बेनिफिट क्या होता है, 40 to 70 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का बेनिफिट होता है। फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी, नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट, ये सब इसके एडवांटेज है। तो यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप डिफरेंट क्रॉप्स में कंपेयर करेंगे तो पल्सेस का नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंटिंग होता है। ओके, तो हियर मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है एटमॉस्फेयर से, देन इट इज़ एमिटेड, मतलब एमिट करने से भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पल्सेस ऑफर स्कोप फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीरियल बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीरियल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम बाय इंक्लूजन ऑफ pulses as catch crops, introduction of rice fallow in South Asia, new niches such as winter planting, market opportunities for more rural income। तो जैसे कि कोई भी सीरियल्स को खरीफ में ग्रो करेंगे या कोई सीरियल्स को रबी में ग्रो करेंगे। अगर हम अपने मेजर पल्सेस की बात करें तो राइस को खरीफ में मेनली ग्रो किया जाता है एंड वीट को रबी में ग्रो किया जाता है। तो इसका जो फैलो लैंड होता है उसमें अगर हम पल्सेस को ग्रो करेंगे तो नाइट्रोजन लैंड में बढ़ जाएगा, इससे नेक्स्ट सीरियल क्रॉप आता है उसको ग्रो करने में मदद मिलेगी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पल्सेस ओवर द ईयर्स ग्रो करने का जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट क्रॉप्स में बढ़ चुका है। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा दिया है 1980s और 2019-20। देखिए यहाँ पे जो डार्क ग्रीन में दिया गया है वो 1990 का डेटा है, और अगर हम बात करेंगे ये जो लंबा पैरेट ग्रीन में दिया गया है दैट इज़ अ रिसेंट डेटा। तो उस टाइम में बहुत कम था और आजकल बहुत ही बढ़ चुका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उस टाइम कम ग्रो किया जाता है, नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे मेजर पल्सेस है तूर, ग्राम, मूंग, उर्द, लेंटिल। प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इज़ हाईएस्ट अमॉन्ग द पल्सेस, मतलब चना दाल जो होता है, और यू call it as chickpea, that is highest among pulses, that is around 9 million metric tons in India, which is followed by tur as 3.5 metric ton. India exports a large amount of gram or chickpea to countries like Pakistan, Turkey, etc. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी है। इंपोर्ट मतलब बाहर से लाना, बिकॉज अपना जो पॉपुलेशन है जिसमें अराउंड 40% मेनली वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करते हैं, तो उनके लिए पल्सेस बहुत ज़रूरी है। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना इनफ नहीं है, तो हमें इम्पोर्ट भी करते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पीस आर इम्पोर्टेड फ्रॉम मोर क्वान्टिटी एज कंपेयर टू अदर पल्सेस। जो फ्रोज़न पी होता है या नॉर्मल पी होता है उसको इम्पोर्ट करते हैं। इट शोज़ दैट डिमांड ऑफ पीस बाय इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया एक्सपोर्ट्स ओनली चिकपी, अदर पल्सेस export has been banned under the Essential Commodity Act 1955। तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ पल्सेस इन इंडिया, तो इंडिया से पाकिस्तान, टर्की, अल्जीरिया, श्रीलंका मेजर पल्स एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। करेंटली एक्सपोर्ट ऑफ पल्सेस इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट चिकपी एंड ऑर्गेनिक पल्सेस इंक्लूडिंग लेंटिल्स अप टू 10,000 metric ton per annum। India is also the largest pulse processor, as pulses exporting nations like Myanmar, Canada, Australia do not have adequate pulses processing facility। एक और बात जान लीजिए, import of pulses in India is free।
तो अब आते हैं, अब हम नेशन की बात कर रहे थे, स्टेट वाइज स्टेटिस्टिक्स ऑफ पल्सेस इन इंडिया। तो अगर हम सारे स्टेट्स को लें तो महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन खरीफ सीजन फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग पल्सेस जिसमें 38% महाराष्ट्र का ये है, क्या शेयर है, फॉलोड बाय राजस्थान, सॉरी, अदर्स का पार्ट है 38%, महाराष्ट्र 24%, फॉलोड बाय राजस्थान 15%, लाइक दैट। तो मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग रबी सीजन फॉलोड बाय यूपी एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी के बारे में जिक्र किया है। Madhya Pradesh has the highest area under cultivation, that is 3.1 million hectare, and the largest production. However, the highest productivity in India is in Gujarat with 1138 kg per hectare, followed by Bihar having 1134 kg per hectare. Maharashtra is the largest producer of tur, having largest area under cultivation. Bihar is the highest production of tur with productivity of tur like 1897 kg per hectare. तो ये था some of the statistical data. Now we shall discuss some of the schemes promoted by Indian government in order to enhance the pulse production. तो National Pulses Development Project 1970 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका क्या एम था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देन स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम आया 1988 में, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस 1991 में आया था। देन इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेस 2004 में आया था। फाइनली नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था 2007 में, जिसमें 17 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है और एक्सेलरेट उसके बाद में उसको दूसरे स्टेट्स में भी एक्सटेंड किया गया। देन एक्सेलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम इन 2010। उसके बाद में आप तो जानते ही हैं, आफ्टर 2016 डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल पल्सेस डे, पल्सेस को मोर MSP दिया गया। उसके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स अपना एडॉप्ट कर रही है। तो द मेन एम इज़ टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स एडॉप्ट करते जा रही है। तो ओके, हम अब तक बात कर रहे थे कि पल्सेस में बहुत सारा पोटेंशियल है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस टू पल्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम है मोस्टली ग्राउंड अंडर रेन फेड मार्जिनल कंडीशंस लाइक कंसिडर्ड एज सेकेंडरी क्रॉप्स। सेकेंड पॉइंट है इंस्टेबिलिटी इन यील्ड, मतलब प्रोन टू ए रेंज ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। जैसे आप जानते हैं आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेटिक विगरीज को पल्सेस प्रोन हो सकते हैं। Low yield potential, limited use of wide range of genetic diversity and desirable genes, use of less input by farmers, then inappropriate supportive policies favoring cereal production at the expense of pulses, then limited access to quality seed of improved varieties, then low investment in pulses research and development। उसके साथ साथ में बायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस के बात करें तो अस्कोकाइटा ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट, रस्ट, बॉटराइटिस, ग्रे मोल्ड, लीफ माइनर, लीफ कैटरपिलर, पॉड बोरर, सिस्ट, ये सब है। एंड अलॉन्ग विद अबायोटिक स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसमें आएगा ड्रॉट, हीट, कोल्ड, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप्स में, मतलब जो हमारे मेजर क्रॉप्स चिकपी एंड तूर है, उसमें जो भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं मैंने लिस्ट किया है। नाउ स्ट्रेटजीज टू एनहेंस पल्स प्रोडक्शन। तो क्या क्या हम मेज़र ले सकते हैं पल्स प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए? फर्स्ट वन इज़ क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, new genetic gains for improving varieties, vertical increase in productivity through sustainable intensification of production system, closing the yield gaps, horizontal expansion and vertical expansion। मतलब
जो लैंड यूटिलाइजेशन को बढ़ाना, जितना हो सके उतना क्रॉपिंग सीजन्स को यूटिलाइज करना, 25 to 60% of the yield gaps in pulses, then closing the yield gaps can alone supply 60% of the pulses deficit. देन फार्मर्स पार्टिसिपेटरी रिसर्च, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी या फार्मर्स के पार्टिसिपेशन से भी हम पल्स प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं। अगर हम जेनेटिकली बात करें, जैसे आप जानते हैं कि हाई इंटेंसिव और हाई इनपुट ये नहीं होते हैं पल्सेस, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो जेनेटिक गेन, जहाँ पे हमारा जेनेटिक फोकस, जीनोटाइप डेवलपमेंट का फोकस क्या हो सकता है कि जीन डिस्कवरी, हीट ड्रॉट टॉलरेंस, रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स और बंके टॉलरेंस, एनहेंसिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, हर्बिसाइड टॉलरेंस, मशीन हार्वेस्टिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, देन इम्प्रूव्ड प्लांट आर्किटेक्चर। इन सारे पॉइंट्स पे हम ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। आजकल मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जीनोम एडिटिंग, बायोटेक्नोलॉजी टूल्स आए हैं, तो उनको भी हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है आज तक पल्सेस में। तो बायोफोर्टिफिकेशन को बहुत ही बढ़ावा या बहुत ही स्कोप दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू कम्बैट द हिडन हंगर। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इक्रिसैट, इकार्डा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में या कंट्रीज़ में रिसर्च कर रहा है, एंड दे आर coming out with different varieties which are suitable to changing climate as well as with high amount of proteins and nutrients। तो यहाँ पे एक देखिए, राइस फैलो रिप्लेसमेंट बाय पल्सेस इन इंडिया एंड बांग्लादेश। राइस में, लेंटिल में, सेजामम में, फैलो लैंड में जो ग्रो कर सकते हैं वह उस टाइप के सुटेबल वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है। देन कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, चैलेंजेस टू पल्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इसमें मार्जिनल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, इंस्टेबिलिटी है यील्ड में, देन यूज़ ऑफ लेस इनपुट बाय फार्मर्स, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी। तो मैंने चैलेंजेस ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन ये जो चैलेंजेस है इमीडिएट नीड्स है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो पल्स प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं या फैलो लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके साथ में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना चाहिए, मतलब जो भी अंडर यूटिलाइज्ड पल्सेस है, वी मे प्रमोट दैट एंड पॉपुलराइज अमॉन्ग द फार्मर्स एंड tell them with by making the awareness programs and all to enhance or to incorporate them in their normal cultivation practices। Then vertical increase in productivity through sustainable intensification and production systems। जैसे आपको यहाँ पे ये हो रहा होगा कि मैं सस्टेनेबल बार बार यूज़ कर रही हूँ। तो सस्टेनेबल एक टर्म है जिसको 1987 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मीनिंग है नॉट ओनली फॉर यू, इट कीप द थिंग्स फॉर फर्दर जनरेशन्स ऑल्सो एज इट इज़। मतलब एक जो चीज़ है जिसको आप भी यूज़ करो और आगे वाले जनरेशन को भी यूज़ करने के लिए रख दो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। देन रेड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोसेस करते हैं, जैसे हम डायरेक्टली पल्सेस को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं बट वी कंज्यूम इट एज दाल, तो उस टाइम में बहुत सारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो सकता है, उसको हमें कम करना चाहिए। तो हाउ टू रेज अवेयरनेस अबाउट पल्स बेनिफिट्स, तो इतने सारे बेनिफिट्स है पल्सेस के, लेकिन फार्मर्स आगे नहीं आ रहे हैं ग्रो करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस देना चाहिए। इंक्लूजन पल्सेस बेनिफिट इन स्कूल करिकुलम एमंग चिल्ड्रन, मतलब जो करिकुलम होता है बच्चों का, उसमें पल्सेस के बारे में अवेयरनेस देना चाहिए। इनोवेशंस इन पल्स प्रोडक्शन एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्नैक्स आ रहे हैं, तो उसमें भी पल्सेस को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, वी कैन नॉट कंज्यूम पल्सेस
एज सच, मतलब ओनली पल्सेस को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लैटुलेंस प्रॉब्लम, जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आता है। इसलिए एक बैलेंस डाइट आपके फूड में पल्सेस भी होना चाहिए, सीरियल्स भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, अलॉन्ग विथ रेजिन्स, डेट्स, जो भी है, मतलब डाइवर्सिफाइड फूड होगा। जितना डाइवर्सिफिकेशन, जितना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। National, regional, and global events involving participation of general public and celebrities, short documentary films on benefits of pulses। उसके साथ में हम क्लाइमेट चेंज में जो पल्सेस का रोल है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशंस क्या क्या है, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, जितना भी हो वो सबको प्रमोट करना चाहिए, मतलब सबको पता चलना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द पल्सेस। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ग्लैड टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज पल्सेस को आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके friends, if you like this video, please do not forget to share, subscribe, and keep on commenting. Thank you once again.